Hello guys, Assalamu alaikum and welcome to my channel. My name is Usama and in today's video I'm going to guide you about the complete application process of another top public university of Italy, that is University of Milan. Before jumping into the application process, first we will talk about the university. So, as I said, it is a public university of Italy and it was built in 1924. And according to QS World University Ranking 2024, it has been ranked at the position of 276. So, it means it is one of the top universities of the world. So, like it comes under top 300 universities of the world. So, it must be a really good and a reputable university, so you all should must apply into this university. And if we talk about the acceptance rate, so it is around 30% because it is one of the top public universities. So this is not a bad acceptance rate. If we talk about the minimum CGPA requirement, so the minimum CGPA required is 2.7. So if you have a CGPA of 2.7 or higher than 2.7, then you should apply into this university. Otherwise, you should refrain from applying into this university as your application will be rejected. If we talk about the English requirements, so you don't need any IELTS for this university, and if you have IELTS or TOEFL, it makes your application stronger. So the university has announced its applications, and the applications will be opened till March 2024. So if we talk about the programs that are offered by this university in English, so we will come on to the official page of this university, and I will also share the link of this page in my YouTube description. So these are the programs that are offered by this university in English. So you can apply in any of those programs that are taught in English. So if we start our application process, so for that we will come on to the main page of the university website, and then after that we will click on the international students option. After clicking on the international students options, here you can see the open masters admission masters program. You will click on open admission masters programs. After clicking on that, here you will see register or have to hand your university login credentials. So for that you will click on register on the portal button. After clicking on this link, it will take us to this page. We will convert this page into English. For that you will right click on your screen and then you will click on translate to English button. So the page will be translated into English. So here you have to fill all of your information for registering yourself. First you will write your username. You can choose any username that you want. For example, I'm writing Usama Khan 1234. And here you will write your passport, and your passport must be at least 8 and maximum 15 characters. After writing your passport, here you will write your first name and last name, and then you will choose your sex, and here you will write your email. After writing your email, here you will write your phone number. After writing your phone number, you will enter your date of birth. First you will write the day. For example, I'm writing any random date of birth just to make you guys understand. And then you will click on I authorize the treatment of my personal data, and after clicking on that you will press sign in button. After clicking on the sign in button, यहाँ पे आप लोगों के पास लिखा है कि आपकी ईमेल जो है वो आपको रिसीव हो गई है, उससे जो है आप अपना अकाउंट एक्टिवेट कर ले। एंड हेयर यू कैन सी द समरी ऑफ द डेटा दैट यू एंटर्ड। मैंने फ़ोन नंबर वैसे रेंडमली ही यहाँ पे लिखा है, और आप जो है अपना ही फ़ोन नंबर यहाँ पे लिखें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे जो है यहाँ पे लिंक रिसीव हो चुका है। अब मैं यहाँ पे इस पे लिंक पे क्लिक करके अपना अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर लूँगा।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन कन्फर्म्ड एंड यू कैन एक्सेस योर रिजर्व्ड एरिया एंड यूज़ यूनिवर्सिटी सर्विसेज। तो यहाँ पे हम जो है रिजर्व्ड एरिया पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे जो है आपने ऑथेंटिकेशन में सबसे पहले अपना ईमेल या यूज़र नेम लिखना है। यूज़र नेम लिखने के बाद आप यहाँ पे यूज़र टाइप जो है वो एक्सटर्नल रजिस्टर्ड एक्सटर्नल चूज़ करोगे और फिर आप अपना पासवर्ड दे के यहाँ पे एंटर प्रेस कर लोगे। अब यहाँ पे जो है हमारा अकाउंट जो है वो लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पे आपका सारा डेटा आ रहा है। अगर आप चाहो तो इसको आप जो है एडिट भी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मॉडिफिकेशन का बटन यहाँ पे है, यहाँ पे लिखा है एडिट द डेटा, या फिर अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहो तो आप जो है चेंज द पासवर्ड पे भी क्लिक कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपकी हो गई है कंप्लीट। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो है आप वापस आओगे यूनिवर्सिटी के मेन वेबसाइट पे। यहाँ पे हमारे पास जो है वो वही वेबसाइट है जहाँ से हमने जो है रजिस्ट्रेशन अपनी स्टार्ट करी थी। अब इसी पेज का लिंक जो है वो मैं आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। और यहाँ पे आप जब इस पेज पे आओगे तो नीचे आपके पास सबमिट योर एप्लीकेशन का ऑप्शन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे साइड पे आपको जो है एडमिशन रिक्वेस्ट नज़र आ रहा होगा, आपने जो है इस पर क्लिक कर लेना है। तो चूँकि हमारा अकाउंट जो है वो अब रजिस्टर हो गया है, तो अब हमारा एप्लीकेशन जो है वो डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपने इस एप्लीकेशन को फ़िल करना है और इसमें सेक्शंस हैं वो आपने वन बाय वन यहाँ पे फ़िल करने हैं। सबसे पहले आपके पास है पर्सनल डेटा का सेक्शन। इसमें जो है सबसे पहले आप सिटीज़नशिप चूज़ करोगे। सिटीज़नशिप में आप अपनी कंट्री चूज़ कर लोगे, जिस भी कंट्री का सिटीज़नशिप है आपके पास। फिर आपके पास जो है यहाँ पे इटालियन टैक्स कोड है, तो ये हमारे पास नहीं है, तो हम यहाँ पे विदाउट इटालियन टैक्स पे क्लिक कर देंगे। नीचे आपका जो है सरनेम लिखा होगा, मींस आपका लास्ट नेम ऑलरेडी लिखा होगा, फिर आपका नेम लिखा होगा, ये हमने चूँकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिखे थे, ऑलरेडी यहाँ पे जो है फिल्ड है। फिर आपका जेंडर लिखा होगा, फिर डेट ऑफ बर्थ लिखा होगा। फिर नीचे आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, तो आपने इसमें जो है अपना प्लेस ऑफ बर्थ चूज़ कर लेना है, जिस भी सिटी, टाउन या विलेज में आपका बर्थ हुआ था। उसके बाद जो है नीचे आपके पास कंट्री ऑफ बर्थ नज़र आ रहा है, तो इसमें जो है आप अपनी कंट्री ऑफ बर्थ लिख लोगे, जिस भी कंट्री में आपकी पैदाइश हुई थी। वो लिखने के बाद जो है आप पर्सनल डेटा आपका कंप्लीट हो जाएगा और फिर आप आओगे नेक्स्ट सेक्शन पे, तो आप नीचे जो है नेक्स्ट पे प्रेस करोगे। नेक्स्ट पे प्रेस करने के बाद कुछ प्राइवेसी पॉलिसी है, तो आप इसको जो है यहाँ से आई डिक्लेयर पे चेक करके नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाओगे। नेक्स्ट आपका है क्वालिफ़िकेशन कैटेगरी। तो हमारे पास चूँकि फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन की डिग्री है, हमने इटली से अपना बैचलर्स या हाई स्कूल नहीं किया, तो हमारे पास फ़ॉरेन डिग्री होगी, तो हम यहाँ पे फ़ॉरेन चूज़ करके नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। अब नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ से अपना स्टडी प्रोग्राम चूज़ करोगे। जिस भी प्रोग्राम में जो है आप अप्लाई करना चाहते हो, वो आप यहाँ से जो है चूज़ कर लोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से कुछ भी रैंडमली ही वैसे जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से जो है चूज़ करने के बाद जो है आप आओगे नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में आपके पास जो है परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे जो है आप अपना एड्रेस लिखोगे, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा। पहले आप जो है कंट्री चूज़ करोगे, फिर यहाँ पे जो है आप अपना प्रोविंस या टाउन लिखोगे। वो लिखने के बाद जो है नीचे आप अपना कंप्लीट वो एड्रेस लिख लोगे, जो भी आपका एड्रेस होगा। फिर आपने नीचे जो है अपना फ़ोन नंबर भी लिख लेना है। फिर नेक्स्ट सेक्शन पे जो है आपका आर यू अ ग्रेजुएट और अ फाइनल ईयर स्टूडेंट का ऑप्शन है आपके पास। इसका मतलब है कि अगर आप डिग्री ख़त्म कर चुके हो या फिर आप अपनी डिग्री के आखिरी साल में हो, तो वो आप यहाँ से चूज़ कर लो। तो अगर आप डिग्री अपनी ख़त्म कर चुके हो तो फिर आप ग्रेजुएट चूज़ कर लो, और अगर आप जो है डिग्री ख़त्म नहीं कर चुके, आप जो है अभी 8th सेमेस्टर में हो, तो फिर आप यहाँ पर फाइनल ईयर स्टूडेंट जो है वो चूज़ कर लोगे। तो चूँकि हमने डिग्री ली हुई है, तो हम यहाँ पर ग्रेजुएट चूज़ कर लेंगे। फिर हम यहाँ से जो है नेक्स्ट प्रेस करेंगे।
नेक्स्ट सेक्शन में जो है आपने अपनी आइडेंटिटी की डिटेल डालनी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अपना आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चूज़ करोगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट चूज़ करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे नीचे आओगे, तो नीचे लिस्ट में आपके पास फ़ॉरेन पासपोर्ट का ऑप्शन होगा। तो आप जो है फ़ॉरेन पासपोर्ट पे क्लिक कर लोगे। अगर आप जो है पासपोर्ट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना चाहते हो, या फिर अगर आप जो है आईडी कार्ड की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना चाहते हो, तो फिर आप फ़ॉरेन आईडी कार्ड यहाँ पे लिख लोगे। फ़ौरन आईडी कार्ड यहाँ पे लिखने के बाद जो है आप नीचे अपना आईडी कार्ड का नंबर जो है वो लिख लोगे। अगर आपने ऊपर पासपोर्ट चूज़ किया है तो फिर आप अपने पासपोर्ट का नंबर लिख लोगे। फिर इशूड इन में आप जो है यहाँ से अब्रॉड चूज़ करोगे, क्योंकि हमने जो है अब्रॉड से ही ये लिया है पासपोर्ट या फिर आईडी कार्ड। फिर बाय में जो है आप यहाँ पे वो अथॉरिटी लिख लोगे जिन्होंने आपको जो है वो पासपोर्ट इशू किया है। वो लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे अपनी कंट्री लिख लोगे। अपनी कंट्री लिखने के बाद जो है आप यहाँ पे इशूइंग डेट लिख लोगे। इशूइंग डेट में जो है आप वो डेट लिखोगे जिस डेट को आपका पासपोर्ट इशू हुआ, और वो आपके पासपोर्ट पे मेंशन भी होगा। फिर यहाँ पे आपने जो है एक्सपायरी डेट लिख लेना है नीचे। एक्सपायरी डेट लिखने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होगा का आई ऑन अ फॉरेन डिग्री, तो आपने इसको यहाँ से चेक कर लेना है। वो चेक करने के बाद जो है आपके पास यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन का ऑप्शन है, तो इसमें आपने बैचलर और इक्विवेलेंट 4 इयर्स चूज़ करना है। क्योंकि हमारा बैचलर जो है पाकिस्तान में 4 इयर्स का ही होता है, तो हम यहाँ पे 4 ही चूज़ करेंगे। 4 चूज़ करने के बाद आपने यहाँ पे कोर्स का नेम लिखना है। मैंने वैसे आपको समझाने के लिए शॉर्ट फॉर्म लिखी है, लेकिन आपने जो है फुल अपने डिग्री का नेम यहाँ पे लिख लेना है। यूनिवर्सिटी के लिए आपके पास यहाँ पे लिंक गिवन होगा, आपने उस लिंक पे क्लिक करना है। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे टाउन का ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपने अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी नेम लिख लेना है। फिर नीचे आप यूनिवर्सिटी में जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपनी यूनिवर्सिटी जो है वो चूज़ कर लोगे। अपनी यूनिवर्सिटी चूज़ करने के बाद जो है आप ओके प्रेस कर लोगे। ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास ग्रेड का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आप अपना CGPA लिख लोगे, या फिर आप जो है अपना परसेंटेज भी लिख सकते हो। और फिर यहाँ पे आप जो है अपनी ग्रेजुएशन डेट लिख लोगे कि जिस भी डेट को आपने जो है ये यहाँ से ग्रेजुएट किया। उसके बाद जो है आप यहाँ से नेक्स्ट पे प्रेस करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाओगे। आपकी डिसेबिलिटी वगैरह आप बिल्कुल हेल्दी हो, तो फिर आप यहाँ पे नो ऑप्शन चूज़ करके नेक्स्ट प्रेस कर लोगे। अब नेक्स्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट्स का सेक्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। सबसे पहले आपने काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट में अपना डॉक्यूमेंट चूज़ करना है। डॉक्यूमेंट में आप जो है फॉर एग्जांपल यहाँ से पासपोर्ट चूज़ करते हो, तो पासपोर्ट चूज़ करने के बाद जो है आप यहाँ पे सामने चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपना पासपोर्ट जो है वो सेलेक्ट करके यहाँ पे अपलोड कर दोगे। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ से सामने जो है अपलोड का बटन क्लिक करोगे, तो आपका पासपोर्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा और वो आपको सामने नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी जो है मैंने अपलोड पर क्लिक किया है और वो अपलोड हो रहा है। वो अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे दोबारा जो है काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट में लिस्ट से अपना एक और डॉक्यूमेंट चूज़ करोगे। यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम CV चूज़ करते हैं, और आपने यहाँ पे जो है अपनी CV जो है वो चूज़ फाइल पे क्लिक करके अपनी CV अपलोड कर लेनी है। तो इसी तरह से जो है आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। आपने जो है CV अपलोड करनी है, डिग्री और DMC मतलब ट्रांसक्रिप्ट को जो है वो आपने मर्ज करके ऑनलाइन यहाँ पे जो है एक साथ ही अपलोड कर देना है। फिर आपने जो है पासपोर्ट भी अपना अपलोड करना है, CV भी अपलोड करना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स इसी तरह से आपने अपलोड करके यहाँ से नेक्स्ट पे चूज़ करके नेक्स्ट सेक्शन पे चले जाना है। नेक्स्ट सेक्शन आपका जो है वो एप्लीकेशन प्रीव्यू का है, तो इसमें आपका जो है सारा का सारा एप्लीकेशन प्रीव्यू के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें आपका एड्रेस, नेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपका डॉक्यूमेंट्स, वो सारा एप्लीकेशन यहाँ से प्रीव्यू करके आप जो है यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर लोगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि आप जो है कन्फर्म करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि अगर आप कन्फर्म करोगे तो फिर आप एप्लीकेशन में किसी तरह की कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो हम इसको कन्फर्म करेंगे, तो हम यहाँ पे ओके प्रेस कर देंगे। कन्फर्म प्रेस करने के बाद जो है आपके पास जो है वो ये स्क्रीन शो हो जाएगी। इस स्क्रीन में जो है सबसे पहले आपके पास डाउनलोड का ऑप्शन है, तो यहाँ से आप अपना एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन हम जो है पेमेंट करेंगे, तो पेमेंट सर्विसेज पे आप क्लिक करोगे।
पेमेंट सर्विस पे क्लिक करने के बाद जो है आपके पास आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे आ जाएगी और सामने जो है उसकी डेडलाइन होगी जो कि है 25/8/2024। फिर सामने जो है आपको 30 यूरोज़ की फ़ी नज़र आ रही है जो कि है इसकी एप्लीकेशन फ़ी। आप इसको सेलेक्ट करोगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने फ़र्स्ट ऑप्शन चूज़ करके नीचे फिर आके आपने जो है वो नेक्स्ट प्रेस कर लेना है। नेक्स्ट प्रेस करने के बाद जो है आपके पास ये स्क्रीन शो हो रही होगी। तो इस स्क्रीन को जो है वो आप नीचे लॉगिन विद ईमेल पे प्रेस करोगे। लॉगिन विद ईमेल में जो है फिर आगे आप अपना ईमेल एड्रेस लिख के जो है नीचे से कंटिन्यू पे प्रेस कर दोगे। कंटिन्यू पे प्रेस करने के बाद आपके पास ये कुछ पॉलिसी है, आपने इसको यहाँ से कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद आपके पास पेमेंट मेथड्स हैं। सो सबसे पहले कार्ड है, फिर बैंक भी है और फिर जो है आपके पास अदर पेमेंट ऑप्शंस भी सबसे आखिर में आ रही है। तो आपने जो है यहाँ पे सबसे ऊपर कार्ड डेबिट कार्ड पे जो है क्रेडिट और डेबिट कार्ड पे प्रेस कर लेना है। उसमें प्रेस करने के बाद आप सबसे पहले नाम लिखोगे, फिर कार्ड नंबर, फिर एक्सपायरी डेट और फिर सीवीसी नंबर लिख के आप नीचे कंटिन्यू पे प्रेस कर दोगे। तो आपका जो है वो पेमेंट यहाँ से हो जाएगी। तो ये था हमारा पूरा एप्लीकेशन का प्रोसेस। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में ज़रूर पूछेगा। हम इसी तरह से मज़े मज़े की वीडियोज़ आपके लिए बनाते रहेंगे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ और जो है हमारी वीडियोस आगे भी शेयर करें। थैंक यू।